Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. I hope you all are safe during this pandemic and corona. So as the cases are beginning to rise in Delhi, so we'll be providing you the online classes, and semester 3 classes will be resuming from 16th of June. So from 16th of June we will be starting the online classes. So from 16th onwards, one class will be uploaded, maybe on a regular basis or an alternate basis. So we'll try to upload as many classes as possible quickly, so that you can use this time in order to cover the entire syllabus, so that you will have enough time to do something else. Because I think this closure of educational institution will continue for a longer period of time. At least on this day we can say that, because as the number of cases still you can say that it is rising from earlier it used to be 500, now 1000, 1500, now above 2000. तो आई डोंट थिंक कि नियर फ्यूचर में आपको रिलैक्सेशन कोचिंग क्लासेस के लिए या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए मिलने वाला है. एंड आई होप सेमेस्टर 3 एग्ज़ाम विल हेल्ड सो इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जैसे सेमेस्टर 2 की क्लासेस हुई है वैसे सेमेस्टर 3 की क्लासेस 16th ऑफ जून से स्टार्ट हो रही है. सो बट स्टिल सेमेस्टर 2 वीडियोज़ आर देयर. तो बहुत सारे कुछ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम होम, दैट मीन्स नाउ होम हैज़ बिकम बेसिकली अ क्लासरूम फॉर अस. सो वी आर बेसिकली रिकॉर्डिंग दिस क्लास, आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर जस्ट मेकिंग सर्टेन थिंग्स क्लियर. बिकॉज आपके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम हुए नहीं है, तो मे बी कुछ स्टूडेंट ने सेमेस्टर 2 के कंटेंट को सीरियसली नहीं पढ़ा होगा, बट इट डज नॉट मीन कि सेमेस्टर 3 के कंटेंट में वो यूज़ नहीं हो रहा है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग्स, सो लिसन टू मी केयरफुली. In semester 3, mainly you have to deal with intermediate micro 1, intermediate micro 1. That means semester 4 will continue with intermediate micro 2nd. Then second part will be intermediate macro 1. So your first year semester 1 and semester 2 was introductory. In semester 1 it was introductory micro, in semester 2 it was introductory macro. Semester 3 now micro and macro both, and the level will be intermediate, and semester 4 will continue with intermediate level in intermediate micro 2nd and intermediate macro 2nd. So obviously for that intermediate micro and macro you need that इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो इंटायर में इंट्रोडक्टरी सिलेबस का यूज़ नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल इन इंट्रोडक्टरी मैक्रो वी विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व, बट दैट अज्यूम्स दैट यू नो द कंसेप्ट ऑफ ISNLM. तो अगर आपने अभी तक ISLM वाली क्लास को प्रॉपरली नहीं देख रखा है सेमेस्टर 2 की क्लास में, स्टिल वो वीडियोज़ अपलोडेड हैं अभी साइट के ऊपर. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रिविजिट दैट साइट एंड सी दोज क्लासेस अगेन इफ़ इट इज़ पॉसिबल. तो ISLM वाला जो सेक्शन है वो यूज़ हो रहा है. रेस्ट अगर आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फर्दर काफ़ी डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन ही करना है उन सबको स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. देन दैट मीन्स इन मैक्रो दे विल बी बेसिकली 3 यूनिट. 1 unit will be the aggregate demand aggregate supply curve, which will be based upon ISLM concept. Second will be the inflation and unemployment, that will be entirely new. Some relation with money and inflation, but altogether यहाँ reading बदल जाएगी और level different हो जाएगा. And the third unit will be open economy. So in the open economy, balance of payment, foreign exchange market, how it is determined, what are the factors affecting exchange rate, so on. So those factors will be covered in the intermediate macro फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे एक लिंक है एक्चुअल में मैक्रो के अंदर, बिकॉज मैक्रो की कंटिन्यूटी है. सेमेस्टर 1 इलास्टिसिटी या डिमांड कंज्यूमर थ्योरी का एप्लीकेशन यहाँ होगा. तो इंटरमीडिएट माइक्रो 1 के अंदर डिटेल में कंज्यूमर थ्योरी एक्सप्लेन करना है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. रीजन बिंग वो स्टार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, चॉइस, डिमांड एंड सो ऑन.
the link which you require to refer from semester 2 is basically that ISLM topic in semester 2. So one paper is intermediate micro 1 macro, and the third will be statistical methods for economics, SME. So in semester 1 and semester 2 you have done with your mathematical parts, so MME 1, MME 2. Now third semester is SME, and based upon that stats, in semester 4 you will be doing the introductory econometrics. So there is a continuity in that organization of syllabus. तो सेमेस्टर 3 के अंदर मेनली आपका ये 3 कोर पेपर के फॉर्म में आ जाएंगे, और जो भी आप जेनरिक इलेक्टिव चूज़ करते हैं, लाइक मैथ्स का अगर कोई पेपर आपने जेनरिक इलेक्टिव चूज़ कर रखा है तो वो क्लास भी आपको मिल रही है। अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पेपर है तो वो क्लास भी अवेलेबल है। तो मोस्टली ये 3 क्लासेज हैं प्लस जेनरिक इलेक्टिव के पेपर हैं, और अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का पेपर आपने चूज़ कर रखा है उसमें तो वो पेपर भी अवेलेबल है। सो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग, यू कैन से इन दैट वे, 5 papers: micro, macro, stats, and generic elective, maths, and your financial economics. Now ये तो content के accordingly हो गया। How will be basically providing you? I will be taking just one example. Like in microeconomics, you will be finding greater difficulty in the sense application का जो level होगा वो काफ़ी सडन, मतलब सेमेस्टर 1 के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा सेमेस्टर 1 के कंपैरिजन में, और इवन इन मैक्रो के अंदर सेमेस्टर 2 के कंपैरिजन में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। सो एंड दैट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विल बी देयर इन इंटायर सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों में डिफ़िकल्टी का लेवल ज़्यादा होता है। फाइनल ईयर में माइक्रो और मैक्रो डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं होता, और वो फिर ऑप्शनल भी हो जाता है, यू मे चूज नॉट टू टेक दैट पेपर, बट सेकेंड ईयर में यू हैव टू डील विद दैट। लाइक माइक्रो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। ये जो रेगुलर क्लास है या डेमो क्लास है उसके अंदर भी अपलोडेड है फर्दर डिटेल। आई एम जस्ट यूजिंग दिस टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग ब्रीफ पार्ट। सेक्शन ए विल बी इज मेनली कंज्यूमर थ्योरी। इस कंज्यूमर थ्योरी का लिंक सेमेस्टर 1 से ये है कि सेमेस्टर 1 में एक यूनिट होता था, यूनिट नंबर 3 हाउस होल्ड। उसमें सिर्फ एक चैप्टर आप पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 21 थियरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस फ्रॉम मैनक्यू। उस चैप्टर के अंदर बजट लाइन, प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर्स चॉइस, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सारे कंसेप्ट एक ही चैप्टर के अंदर थे। तो जो एक सिंगल चैप्टर आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ था, उस सिंगल चैप्टर को अब यहाँ पे 10 डिफरेंट चैप्टर में पढ़ना है। और 10 डिफरेंट चैप्टर का मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट। सो फॉर बजट कंस्ट्रेंट देयर विल बी अ कंप्लीट चैप्टर। फॉर प्रेफरेंस दैट इज इंडिफरेंस कर्व देयर विल बी अ कंप्लीट चैप्टर। उस प्रेफरेंस को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यूटिलिटी विल बी अ नेक्स्ट चैप्टर। देन ऑप्टिमल चॉइस विल बी अ कंप्लीट चैप्टर, डिमांड विल बी नेक्स्ट चैप्टर। एंड वो सारे टॉपिक बेसिक है। जो पेपर में एक्सपेक्टेड होगा वो एप्लीकेशन होगा। तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है इट विल बी मोर एंड मोर एप्लीकेशन एंड मोर न्यूमेरिकल। सो इट विल बी मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, बट फ्रॉम वेयर यू हैव टू कवर दैट न्यूमेरिकल। इन कंज्यूमर थ्योरी द रेफरेंस बुक विल बी हॉलवेरियन। ठीक है, लास्ट यू कैन से 5-7 ईयर से ही हॉलवेरियन की बुक लगी हुई है रीडिंग के अंदर कंज्यूमर थ्योरी में। हॉलवेरियन में दो बुक है इनफैक्ट। वन विल बी योर टेक्स्ट बुक दैट विल बी बेसिकली एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट पार्ट, एंड सेकंड इज वर्क बुक। उस वर्क बुक में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन है। सो योर फोकस विल बी बेसिकली ऑन वर्कआउट और वर्कबुक। तो हॉलवेरियन का वर्कबुक है और हॉलवेरियन की रीडिंग है यानी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक आप रीडिंग में कवर करते हैं जस्ट फॉर कंसेप्ट, और वर्कबुक यूज़ करेंगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो सारे क्वेश्चन इनफैक्ट जो वर्कबुक के हैं या पास पेपर के हैं, लाइक सेमेस्टर 2 में जैसे आपको बुकलेट मिली थी वैसे सेमेस्टर 3 का बुकलेट भी माइक्रो और मैक्रो का रेडी है। ये आप दैट विल बी बेसिकली इंक्लूडिंग many questions from the Hallvarian workbook and previous year question as well. So for micro and macro similarly you will be getting one book for stats as well. जितने चैप्टर हॉलवेरियन से रेफ़र करने उस चैप्टर का सॉल्यूशन
सॉल्यूशन साइट पे अपलोडेड होगा, मतलब चैप्टर वाइज बजट लाइन, प्रेफरेंस, यूटिलिटी, चॉइस, डिमांड, रीबिल्ड प्रेफरेंस, स्टट्सकी इक्वेशन, बाइंग एंड सेलिंग, इंटर टेम्पोरल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ऑल दो चैप्टर, जितने भी चैप्टर मैं कह रहा हूँ वो सारे चैप्टर का जो सॉल्यूशन होगा वो साइट के ऊपर अपलोडेड होगा। सिर्फ रिस्क वाले चैप्टर के अंदर निकोलसन स्नाइडर में वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, बट स्टिल मेनी क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल। सो बट ये नहीं करना है कि डायरेक्टली पहले आपको सॉल्यूशन देख करके वहाँ से देखना है। फर्स्ट यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आफ्टर रीडिंग द और सीइंग दोज वीडियोज़, क्लासेस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आप कीजिए। क्लास भी जब होगी तो किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन्हें पैटर्न मालूम है। किसी भी पर्टिकुलर क्लास, लेटर से बजट कंस्ट्रेंट की क्लास है या प्रेफरेंस की क्लास है, तो उस क्लास के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्लास के अंदर ही सॉल्व करें। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमने सिलेबस कंप्लीट पहले ख़त्म कर लिया उसके बाद पास्ट ईयर पेपर करेंगे, वो फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट ये कि आपने बजट लाइन अगर चैप्टर कर लिया है तो बजट लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर में वो तो बजट लाइन के साथ हो जाने चाहिए। इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है वो इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर के बाद बन जाना चाहिए आपसे। तो आप चैप्टर टू चैप्टर प्रिपेयर करते जाते हैं और इस कंज्यूमर थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करके रखिएगा, मतलब बेसिक पार्ट एंड एप्लीकेशन पार्ट। तो इनिशियल जो पीरियड है जब तक कॉलेज वगैरह नहीं खोलता, एटलीस्ट जो बेसिक कंसेप्ट है लाइक बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंस, यूटिलिटी, चॉइस और डिमांड, इनिशियल जो 5 चैप्टर है उस 5 चैप्टर को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे दैट विल बी यूज़फुल नॉट ओनली इन सेमेस्टर 3, इट विल बी मोर यूज़फुल इन सेमेस्टर 4, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपको 3 और 4 दोनों के लिए उसको पढ़ना है। तो वेरिएंट का टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का सॉल्यूशन होगा। चैप्टर में जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है, अगर आपको लगता है नहीं उसका डिक्टेशन कम है डायरेक्टली, तो याद रखिएगा वो सेपरेटली नोट्स के सेक्शन में अलग से अपलोडेड होता है। दैट मीन्स ऑन साइट यू विल बी फाइंडिंग वन नोट सेक्शन में चैप्टर वाइज क्लास के नोट्स होंगे कंप्लीट। ऑल्दो एडवाइजेबल ये होता है कि आप जैसे जैसे लेक्चर देखते जाइए उसको अपने नोटबुक में लिखते जाइए, और बट सम स्टूडेंट्स प्रेफर किए ओके कंसेप्ट पता चल गया नोट्स हम पढ़ लेंगे। तो अगर कंसेप्ट आपने सिर्फ वीडियो देख कर ही वो कर लेना है तो नोट्स का एक अलग सेक्शन है, वहाँ से आप वो चैप्टर वाइज नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन जो वर्कबुक का है वो उसके ऊपर अपलोडेड है। जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है उससे रेफ़र करके आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो फॉर दैट डाउट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दैट डाउट। सेक्शन ए इज़ बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी एंड सेक्शन बी is production and cost. Second section production and cost है। Usually the weightage is 60% here and 40% here। मतलब 45 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा। And this production and cost will have 3 chapters from Nicholson and Snyder। 3 चैप्टर है निकोलसन एंड स्नाइडर के, चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। 11th चैप्टर दैट मीन्स प्रोडक्शन इज़ 1 चैप्टर, कॉस्ट विल बी नेक्स्ट चैप्टर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी द 3rd चैप्टर। और जहाँ से आप एंड करेंगे रिमेंबर सेमेस्टर 4 का माइक्रो वहीं से बिगिन होगा, मतलब फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर निकोलसन स्नाइडर की कंटिन्यूटी हो जाएगी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। जस्ट बट फॉर द टाइमिंग जस्ट स्टिक फॉर द सेमेस्टर 3। सो 2 मेन बुक, 1 विल बी हॉल वेरिएंट एंड सेकेंड विल बी निकोलसन एंड स्नाइडर। ठीक है, अगर किसी को बाई करना है हॉल वेरिएंट का बुक तो वो भी ठीक है, बीइंग एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट यू शुड बी कीपिंग दैट बुक बिकॉज इट विल बी यूजफुल फॉर लेटर ऑन एज वेल। सो वो कोर बुक है माइक्रो के लिए। सो हॉल एंड सेमेस्टर 4 के अंदर भी वो यूज़ होगा। निकोलसन स्नाइडर भी सेमेस्टर 4 में अप्लाई होता है, बट निकोलसन स्नाइडर इज मोर मैथमेटिकल। सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट विल बी निकोलसन स्नाइडर। इसमें 3 चैप्टर हैं, इस तीनों चैप्टर के सॉल्यूशन भी पोर्टल पे अपलोडेड होंगे। दैट मीन्स यू विल हैव द concept in the lecture notes in your own notebook, and for problems you have to consider Nicholson Snyder and Hall variant workbook plus जो previous year question है वो previous year question इस बुकलेट के अंदर included है। so you don't have to buy 10 year। ठीक है, जो क्वेश्चन बुकलेट में अवेलेबल नहीं होगा वो सेपरेटली मेल से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लाइक माइक्रो के ये कंटेंट हो गए।
कीवर्ड विल बी बेसिकली एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल। रिमेंबर, ये कंसेप्ट टॉपिक वाइज लिखते समय काफ़ी इजी लगता है कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ही तो पढ़ना है, बट जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो रिमेंबर you will find greater difficulty in production and cost problems as compared to even consumer theory। मतलब वो जस्ट नाम से लग रहा है कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का यूनिट है तो इजी होगा, और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के जो क्वेश्चन होंगे, अगर आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ कि पास्ट ईयर में क्या रखा है, किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख करके, और कितने क्वेश्चन आप वहाँ से टैकल कर सकते हैं या बना सकते हैं, सो इट विल गिव यू सम आइडिया। सो द फोकस विल बी बेसिकली ऑन द न्यूमेरिकल सेक्शन। क्लियर? सिमिलरली मैक्रो के अंदर 3 यूनिट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो से मैंने कहा वो ISLM के ऊपर बेस्ड होगा। सेकंड इन्फ्लेशन है, जो मेनली ब्लैंचार्ड की रीडिंग से रेफर करना है। थर्ड ओपन इकॉनमी है। और मैक्रो का नेचर और माइक्रो के नेचर में एक डिफरेंस होगा। इन मैक्रो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, दे विल बी न्यूमेरिकल बट द proportion of that numerical will be less, but in micro you will find more numerical oriented questions. So you can say 2/3 will be the numerical part, 1/3 will be the theoretical in micro, and in macro you can say the other way around. 1/3 will be the numerical part and 2/3 you will have to explain what is exchange rate overshooting, explain fixed exchange date, मतलब उसके बेसिस की बेस्ड अपॉन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, दैट मीन डिस्क्रिप्टिव, द रिटन एलिमेंट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो माइक्रो और मैक्रो में ये माइनर सा डिफरेंस रहेगा। डाउट्स और प्रॉब्लम्स के लिए ऑब्वियसली जो क्लासेस अपलोड कर रहे हैं हम, वो लास्ट ईयर जो क्लासेस अपलोड है, बिकॉज करंटली वहाँ से भी ऑफलाइन तो पॉसिबिलिटी है नहीं करंट सिचुएशन में, तो वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम। तो अभी क्लास जो अपलोड करेंगे वो लास्ट ईयर वाला अपलोड करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा इंटरेक्टिव है। लाइक दिस इज़ मोनोलॉग, जो मैं कर रहा हूँ मोनोलॉग है, ठीक है। वो मतलब देयर इज़ नो स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ मी बट आई एम जस्ट एड्रेसिंग टू यू। बट जो क्लास रिकॉर्डेड अपलोडेड होगी उसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे, मतलब दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन, वी आर रिप्लाइंग टू देम, सो दैट इंटरेक्टिव क्लास विल बी मोर यूजफुल। ठीक है, तो मतलब उस क्लास पे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। whenever it will be feasible for us to start that offline, any student who is joining online is free to come or attend that offline. That means you are getting basically both the access, online as well as the offline classes. Clear? बेटर ही होता है ऑब्वियसली ऑफलाइन की क्लास अगर हम एज इट इज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक एडवांटेज होता है, मतलब वो इंटरेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा आपको रियलिस्टिक लगेगा। अदरवाइज़ अनरियल फॉर्म हो सकते हैं, आपने कोई स्टूडियो नहीं बना रखा, बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट सा नहीं कर रखा डिलिबरेटली, तो क्लास के कंटेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फोकस मोर ऑन द कंटेंट एंड हाउ इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड। नाउ क्वेश्चन इज इफ यू हैव any doubt, how you will be solving that doubt? There are 2 ways, or in fact there are 3 different ways. One, हर वीडियो के नीचे आस्क योर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड आपका कंसर्न है तो वीडियो देखते समय या वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वो हमें मेल के फॉर्म में मिल जाता है। विल बी एड्रेसिंग दोज क्वेश्चन नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस बट ऑब्वियसली ऑन अ वीकेंड बेसिस एटलीस्ट। तो वन वे इज़ टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देयर। सेकेंड इज़ यू कैन कॉल, बिकॉज अभी देखिए कोई क्लासेस ज़्यादा कहीं आए नहीं, तो जो फैकल्टीज़ भी होंगे वो ज़्यादा इंगेज नहीं होंगे, सो यू कैन डायरेक्टली कॉल। हार्डली 2-4 मिनट का आपका डाउट होता है तो यू कैन अटेंड। ओकेजनली कभी कोई कॉल मिस हो सकता है बट जनरली आप कॉल के फॉर्म में या व्हाट्सएप के फॉर्म में उसे कंसर्न को रेज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ दैट वी कुड बी कंडक्टिंग सम जूम सेशन एज वेल, मतलब वीकली या ऑल्टरनेट वीक पे जूम सेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव जो कंसर्न आपका है तो वो लाइव कंसर्न आपका उस समय सॉल्व हो जाएगा। तो वी कुड बी अरेंजिंग दो जूम सेशन एज वेल। सो देर आर 3 different ways in which you can solve your query problems without getting infected by corona, ठीक है। सो यू हैव टू बी सेफ एज वेल। तो जब केसेस कम हो जाएंगे ऑफलाइन आप आने के लिए आप हडसन लाइन वाले सेंटर पे कभी भी आप आ सकते हैं कॉल करके। ब्रांच वैसे अभी भी ओपन हो रहा है बट आई विल एडवाइज नॉट टू गो देयर, जस्ट एक स्टाफ वहाँ होता है। अगर कोई कंसर्न है, कोई बुकलेट कलेक्ट करनी है आपको फिजिकल फॉर्म में, आप नियर बाई रहते हो और आपको लगता है नहीं बस मुझे बुकलेट वहाँ से कलेक्ट कर लेनी है या कोई कंसर्न रेज करना है या फीस वहाँ जस्ट डिपॉजिट कर देनी है, तो फॉर दैट पर्पस इट इज़ ओपन, सो यू कैन गो देयर।
सो देयर इज़ नो कंसर्न रिलेटेड टू दैट. बट प्रॉब्लम्स के लिए या डाउट्स के लिए आई डोंट थिंक नियर, मतलब 1-2 महीने के अंदर तो फिजिबल है नहीं. अगर जब कॉलेज आपका ओपन होता है सितंबर के मंथ में, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट. बट इट इज़, आई विल से, देयर इज ग्रेटर अनसर्टेनिटी. सो गिवन दैट आई एक्सप्लेन इन फैक्ट ऑल एस्पेक्ट. जो क्लासेस अपलोडेड है या जो फर्स्ट क्लास आप डेमो के फॉर्म में देख रहे हैं वो क्लासेस लास्ट ईयर जो क्लास हुई थी वो अपलोडेड है. तो जो क्लासेस अपलोड हो रही है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली है. अब एक कंसर्न स्टूडेंट्स का ये होता है जनरली कि अगर कोई सिलेबस के अंदर चेंज होता है, तो रिमेंबर वो हम देख रहे हैं कि सिलेबस के अंदर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो कोई अगर मॉडिफिकेशन होगा, चेंज होगा, देन वी हैव ऑलरेडी दैट सेटअप. विल बी एड्रेसिंग दैट कंसर्न फ्रॉम होम ऑल्सो, इवन इफ दैट क्लास विल नॉट रिज्यूम ऑफलाइन. सो विल बी एड्रेसिंग. वी आर इन अ सिचुएशन टू एड्रेस योर ऑल कंसर्न थ्रू ऑनलाइन. तो जितने भी कंसर्न है, मतलब अगर कोई आपको इन बिटवीन भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये सिलेबस का चेंज है, या हमें कोई एडवाइस करना होगा आपको इन बिटवीन की ठीक है आपने इतने कंटेंट देख लिए, रेस्ट के लिए आपको ये करना है, सो फॉर दैट पर्पस विल बी अपलोडिंग दिस टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियोज़. रेस्ट आई विल ऑलवेज से दैट जनरली स्टूडेंट्स टेक अप माइक्रो, स्टैट्स एंड मैक्रो. ठीक है, paper wise fees etc all mentioned on that website, and there will be a discount on all three paper as well of 25%. so for that purpose you can directly call on any number, although it is written on website as well. और 9891555578. ठीक है, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप, जो पेमेंट का सिचुएशन है वो पेमेंट लिंक है, इसके लिए भी आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, विल बी सेंडिंग यू द पेमेंट लिंक एंड दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, यू डोंट नीड टू कम टू द ऑफिस. सो आई होप जो कंसर्न है वो कंसर्न मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिया है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फर्दर यू कैन कॉल ऑन एनी नंबर. ठीक है, so stay safe and use this time in order to cover the syllabus, and use this time I will say not just to cover your semester 3 syllabus, because जो current situation है उसमें ये थोड़ा prolonged रहेगा, मतलब it is not a short term, and given that what will be the impact on the economy, so the job situation will also become more, I will say it will not improve obviously, so further situation may deteriorate, so you have to be aware about that as well and be और डू समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल. दैट मीन्स जो सेमेस्टर 3 का आप कंटेंट पढ़ रहे हैं और कॉलेज आप जा नहीं रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, सो यू विल हैव इनफ टाइम. सो यू हैव इनफ टाइम, देन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना है उसके बारे में भी आप अभी से अगर सोच सकते हैं कि आपको मास्टर्स की तरफ जाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना शुरू किया, या फिर आपको जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स करना है उसके लिए प्रिपरेशन शुरू किया. सो यू हैव इनफ टाइम, सो यूज़ दिस टाइम. ठीक है, इस टाइम को आपको बेसिकली यूज़ कर लेना है to cover the syllabus as well as prepare that foundation for whatever course that you want to continue after that graduation. ठीक है, so thank you and stay safe.